اب کروں معذرت کے ساتھ، لیکن تازہ ترین صورتحال اپنے نمائندے سے جان لیتے ہیں کیونکہ اجلاس کی کارروائی کا آغاز ایک بار پھر سے ہو گیا ہے۔ فہیم بتائیے گا، اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، کتنے ارکان اس وقت موجود ہیں اسمبلی کے اندر؟ بالکل جی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا تھا، جس میں سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے بتایا جا رہا تھا ارکان کو کہ طریقہ اعتماد کے حوالے سے جو ووٹنگ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے آج جو ہے اسمبلی کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، جبکہ سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج جو اعتماد کا ووٹ ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، تو اس کا کارروائی جو ہے وہ کس طرح ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، جو ووٹرز ہیں وہ جو ارکان اسمبلی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہوں گے وہ کون سی لابی میں جائیں گے اور کس طرف کون سا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ حکومتی اراکین کی جو بڑی تعداد ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہاں پر پہنچے، حافظ عمار یاسر بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر جو ان کے جانب سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو اراکین ہیں وہ 186 پورے ہیں اس وقت عوام کے اندر، اور وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آج ہر صورت لے لیں گے۔ اچھا فہیم، حکومت تو اعتماد کے ووٹ کے لیے تیار ہے، اپوزیشن کا اس وقت کیا کہنا ہے؟ جی، اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھے، اور جس طرح سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ووٹنگ کس طرح ہوگی، تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اسمبل ہو جائیں اور 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا جس میں اعتماد کے ووٹ کو لینے کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ شکریہ فہیم، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ مالک صاحب اور رانا عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عظیم صاحب، جس طرح سے اگر گزشتہ سال کی بات کریں تو اس وقت جو اجلاس تھا اس میں منحرفین نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا تھا، پھر ہم نے 17 جولائی کے الیکشنز میں دیکھا تو منحرفین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا اس وجہ کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ اراکین اس دفعہ واپس نمبر سامنے آئے ہیں جو کہ حکومت جس وجہ سے پورا اعتماد ہے؟ جی بالکل، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری خود صبح 2 ارکان اسمبلی سے ملاقات ہوئی، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا پریشر ڈالا گیا، ہمیں لالچ دی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے آئندہ سیاست کرنی ہے تو ہمیں اب پی ٹی آئی میں ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عوام کے اندر پی ٹی آئی جیتنے کے لیے پی ٹی آئی میں رہنا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں تو بڑی کلیئر تھی۔ دیکھیں ابھی ٹائم ہے سر 2 یا 4 ماہ یا 6 ماہ کا میکسیمم الیکشن کے لیے، اگر اکتوبر میں بھی چلے جاتے ہیں تو کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ تو کوئی بھی جو سیاستدان ہے، جو سمجھدار ہے، جس نے سیاست کرنی ہے اپنے حلقے کی، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی پارٹی چھوڑے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا، اس ڈیسیژن کے بعد تو ممکن نہیں ہے، دیکھیں وہ نااہل ہو جاتا، اگر نہیں آتا تو اس کے باوجود جو نہیں آئے اور ان کو پارلیمنٹ لیڈر نے جو ہے کہہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے نہیں آئے، تو اس کے بعد بھی وہ بالکل ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد اگر اس حلقے میں الیکشن ہوتا وہ نہیں جیتتا تو اس کی سیاست تو دفن ہو گئی۔ تو اس نے 5 کروڑ 10 کروڑ یا 20 کروڑ کے لیے اپنی سیاست دفن تو نہیں کرنی، ان لوگوں نے اپنی سیاست صرف دفن کرنی ہوتی ہے جو محسوس نشستوں پہ منتخب ہوتے ہیں، جنہیں بتاؤ تو اگلی دفعہ شاید ان کی باری نہ آئے۔ اب تو واضح طور پہ سب کو علم ہے کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، ان سیاسی حالات میں اور زمینی حقائق جو ہے اس میں پی ٹی آئی الیکشن میں جیت جائے گی۔ تو اس لیے اس دفعہ کوئی بھی جو ہے اکثریت مثلا جتنا کہا جا رہا تھا 20 25 7 8 لوگ، وہ لوگ نہیں منحرف ہوئے، وہی لوگ منحرف ہوئے ہیں جن کے متعلق پہلے سے ہی پتا تھا۔ مثلا خرم لغاری اور مومنہ جو ہے اس کے حوالے سے کس کو نہیں پتا تھا، ہم لوگ بھی بریک کر چکے تھے خبر اور سب کو پتا تھا۔ اس کے علاوہ کون منحرف ہوا ہے؟ کوئی ایسا ایک بھی رکن نہیں ہے جو نہیں ہوا، بلکہ ان کے قافلے میں بلال جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے، اس نے آ کے ان کی حمایت کی ہے، کپتان سے ملاقات کی ہے، اور آج کے بعد جو ہوگا، جو آج قرارداد ہوگی، اس میں کامیابی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے پرندے جو ہیں شاید وہ اپنے گھونسلوں سے اڑ کے جو ہے وہ کسی اور گھونسلوں میں جا کے بیٹھنے کی کوشش، یعنی تعداد آپ کو مزید بڑھتی ہوئی رانا صاحب نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا، مالک صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میں ٹائم دے رہا ہوں اتنا اسی لیے کہ ارلی الیکشنز پر بات ہو جائے، اگر اس پر بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رابطے ہوئے ہی نہیں، یا رابطے ہوئے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے؟ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کیونکہ اگر یہ صورتحال جو لگ رہی ہے اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب صبح اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے؟ نہیں، میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دم تحلیل ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ کم از کم 5-6 دن تو مجھے لگتا ہے ابھی دیکھیں گے کس طرح کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کو جلدی کس بات کی ہے۔
क्योंकि मैं जैसे पहले भी कहा है कि ये बड़ा एक्सट्रीम अब उनका स्टेप है। और जो आज उनका बयान था खान साहब का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, जहाँ उन्होंने कहा कि लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि जी लाल लकीर लगा दी गई है, क्रॉस लगा दिया है, तो मैं अब आपको लाल लकीर मिटा के दिखाऊंगा। और ये लाल लकीर लगाने वाले जो हैं ये तारीख से, लोगों से, इन तमाम चीज़ों से इग्नोरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे जो आगे ये कॉन्सेंट्रेशन लग रही है, ये डायरेक्ट खान साहब की और इंस्टीट्यूशन की लग रही है। देखिए, कुछ दिन पहले तक खान साहब ने कोशिश की एक डिफरेंस डालने की कि वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे थे, ये तासुर बनाया कि मेरा झगड़ा एक फर्ज वाहिद से था, इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है। आज खान साहब का जो लेटेस्ट जाविया आया है वो बड़ा क्लियर है कि अब उन्होंने इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रंटल होने का फैसला कर लिया। इसलिए आने वाले दिन बड़े टेंस होंगे और ये ज्यादा इस वक्त खान साहब और इंस्टीट्यूशन के दरमियान में एक जरूरत होगी रीसेट का बटन दबाने की, कि इनके दरमियान में जो मिसट्रस्ट है ये कैसे कम होगा, इनकी रिलेशन दोबारा किस बेसिस पे बनेगी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अब मुझे नजर आगे आ रहा है। और ये खान साहब के लिए शायद ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसमें बड़ा मसला नहीं है ऐसा कि जरदारी साहब या मियाँ साहब या दूसरे, खान साहब के लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। उसको ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए खान साहब के पास वो उनको फील होता है कि उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रीट पावर है, उनके पास लोगों की पावर है, इंस्टीट्यूशन के पास अपनी पावर है। दोनों एक्सट्रीमली ताकतवर चीजें हैं दोनों के पास जो है। इसलिए दोनों को दो कदम पीछे हटना होगा और एक नया आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस बेसिस पे होगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन तो हम जा रहे हैं। यानी आपके ख्याल में एक सेंसिटिव सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मालिक साहब साथ ही मौजूद रहेगा। औरिया मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। औरिया साहब, इस मौजूदा सूरत हाल की मुल्की सियासत, खासकर पंजाब की सियासत पर क्या दूर असरात पड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का जो दिन है ये बुनियादी तौर पर एक बात वादे करता है कि इस वक्त वो जो एस्टेब्लिशमेंट अपनी लड़ाइयां मुस्तकिल चला आ रही है, उसके अंदर, क्योंकि उसका चेहरा दोस्तों देखते नहीं है इसलिए उसको अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसको डिफीट होती चली जा रही। पहली लड़ाई उसने लड़ी थी 17 जुलाई के उन इलेक्शन में, कि जिस वक्त वोट आया था उनका, तो 20 लोगों की जो सीट थी उसके अंदर ऑल आउट्स जो थे वो इमरान खान के खिलाफ थे। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी और नजर आती थी, और साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो था उसके बारे में इमरान खान का एतमाद नहीं था, लेकिन वहां पर बहुत बुरी डिफीट हुई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तकरीबन एक दिन पहले जब इन लोगों से मिला था, चीफ सेक्रेटरी और इन लोगों से, तो वो यही कह रहे थे कि वो जीत नुमाया है। तो मैंने कहता था तो हमजा शहबाज से बताते क्यों नहीं हो? तो वो कहते थे कि हमजा शहबाज को बताएंगे तो हमारे जान पे आ जाएगा कि तुम कर क्या क्या कर रहे। उसके बाद सेकंड टाइम जो 7 सीटों पे फिर दोबारा इमरान खान एक बकायदा एक्ट किया गया एक जगह, लेकिन आपको कौन सी सीटें जहां इमरान खान हार सकता है, वहां डिफीट हुई। अब इस वक्त एक बड़ा सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है कि शायद पब्लिक फोर्स जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। ये बड़ी, मैंने 25 साल इसी काम में गुजारे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त ताकत है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल में गिन के 50 दफा बताना है कि आपके पास कितने डिप्लॉयबल लोग हैं, आपके पास किस जगह पे कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हैं। और अगर आप 200 जगहों पे एक किस्म के हंगामे शुरू हो जाए, ये लोग खड़े हो जाए, तो 5 से 6 मई भी नहीं आते पूरे मुल्क में आपके हाथ में। तो ये जो चंद लोगों को डराने की बात होती है, इस एमपीए को डरा दिया, इस एमएनए को डरा दिया, इस फलां को डरा दिया, उनके वीक पॉइंट्स उनके पास होते हैं, फाइल्स बनी होती हैं, हमने अपनी आंखों के सामने फाइल्स बनती देखी हैं। कई दफा मैंने उस वाक्य का जिक्र किया कि एक बंदे को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, मैं उसकी फाइल जो थी वो लेके गवाहियां दे रहा था वहां पर न्याय के अदालतों के अंदर, वो फाइल गायब हो चुकी हुई थी, मेरे पास फोटो कापियां पड़ी हुई थी ओरिजिनल फाइल, और बाद में बंदा वज़ीर आला बन भी गया। तो वो उस सतह पे तो आप कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता यह है कि अब उनके दिलों से उसकी वजह एक है कि होता यह है कि जब आपको यकीन हो कि अगले इलेक्शन में आपको एस्टेब्लिशमेंट जितवा देगी, तो फिर तो आप कहते हैं बाजी लगा दो। लेकिन अब पता होता है कि एस्टेब्लिशमेंट तो इतनी हारती चली आ रही है,
तो कहते हैं भाई मैं अब जो पार्टी पॉपुलर है उसको क्यों छोड़ दूं? देखो ना, ये जो 12-13 कमाल की बात है, तो कमाल की बात है कि पाकिस्तान ही है जहाँ ये कहा जा सकता है तो हमने FIA का इस्तेमाल किया, हमने जियो फेंसिंग करवाई। ओ भाई, तुम जियो फेंसिंग इस काम के लिए करते हो तो चोरों के लिए करो। जहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने जो अपना एयरपोर्ट से पता कराया, अपना पता कराया, यानी ये ऐसे लगता है कि यहाँ जमहूरियत नहीं हो रही, यहाँ कुछ स्कॉटलैंड यार्ड की कौम बैठी हुई है और वो बड़े आराम से कैसे चले आ रहे हैं और हम भी चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डिफीट है आज अगर हमें हो जाती है, और ये एक 3rd-4th डिफीट है जो रेगुलर चली आ रही। वो मैंने तो पहले भी कहा था कि वो दो सूबों से मायूस हो चुके हैं। अब उनका सारा का सारा जोर जो है वो बलूचिस्तान में है। अपनी बनाई हुई पार्टी तोड़ते हैं, उसी को लोगों को तकसीम करते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी ही बनाई हुई एमकम पहले बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और आप सब यहाँ तबसरा कर रहे हैं ना, आप माइक लेके निकले हैं, आप पसनी चले जाएं, आप गवादर चले जाएं, आप बन्नू आकल चले जाएं, आप कोहाड़ चले जाएं, आप गुजरांवाला के किसी वजीराबाद में चले जाएं, आप किसी से पूछेंगे कौन कर रहा है, आपको हैरानी होगी। जो अव्वल तो कहेंगे आपको नहीं पता कि ये कौन करता है, और जब आप कहेंगे मुझे नहीं पता तो वो खुल के या तो नाम बता देंगे और फिर कहेंगे नाम हमें भी पता है कि कौन करता है। तो ये है पब्लिक की लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग। और ये सब आप समझते हैं कि अब पब्लिक के अंदर काफी हद तक जो है वो इस चीज की आगाही आ गई है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मालिक साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी यही सवाल लेके चलते हैं। मालिक साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह और ये सब फरमा रहे हैं कि अब एक ऐसा मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया कि ऑड्स के बगैर भी सियासत में जीता जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन आ गई? और दूसरी चीज ये कि आपको क्या लगता है कहां पर मिसरीड किया है, या तो किसी इदारे ने या फिर PDM ने? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि फौज का ज्यादा बड़ा रोल हराने में होता है, जिताने से ज्यादा हराने में होता है कि किसको हराया जाए। फौज कभी भी आपकी जरूरत तो नहीं होती जीतने के लिए, और हमारे मुल्क में भी फौज ज्यादा तो इस्तेमाल हराने के लिए हुई है। फौज ने हराया, लोगों को जिताया तो लोग अपने ऊपर ही जीतते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये भी देखना है कि हम किस नहज पे हैं। बिकॉज देखिए, झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा होता है पावर टर्फ के ऊपर। कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता पावर। अगर आज यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है तो एस्टैब्लिशमेंट को भी 75 साल से एक आदत पड़ी हुई एक पावर एक्सरसाइज करने की। पहले भुट्टो साहब के जमाने में कुछ स्पेस गई, इस तरह गई, इमरान खान साहब ने बड़ी स्पेस ली है, वो भी जबरदस्त। ये भी चीजें होती हैं, तमाम अपनी जगह है। लेकिन इसी मुल्क में 25 तारीख भी इसी मुल्क में हुई थी। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे जी लोगों की पावर से ये, और जी ये लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अब दूसरी नहज पे पहुंच गया है, तो 25 के बाद तो रिट्रीट देखी ना हमने, PTI की स्ट्रीट में वो एग्रेशन निकली। वो स्ट्रीट तो उसके बाद ठंडी हुई, उसमें आग तो ज्यादा नहीं लगी। अभी जो मुझे खतरा नजर आ रहा है, मुझे खतरा ये नजर ये आ रहा है कि ये अभी तक कुछ जगह पे कुछ ब्रेक्स थी। मुझे अब ये लग रहा है कि हम एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं बिटवीन खान साहब एंड इंस्टीट्यूशन। ये एक इतना खुला जो टकराव है, ये और जिस टाइम पे ये नजर आ रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, जो डिविजन्स हुई हुई हैं, जो इकोनॉमी की हालत है, वो किसी भी तरफ ये हालात बिगाड़ की तरफ चले जा सकते। यानी आपके ख्याल में इस वक्त टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कता कलामी की माजरत, इस वक्त असम्बली सूरत हाल के हवाले से अपने नुमाइंदे फहीम अख्तर की जानिब बढ़ते हैं। फहीम, बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं असम्बली में? बराए मेहरबानी जी, अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उनकी जानिब से कुर्सियां जो है वो उठा के स्पीकर के डेस्क के आगे रखने की कोशिश की जा रही है, भरपूर नारेबाजी की जा रही है। जबकि इस वक्त ऐवान के अंदर की अगर हम बात करें तो अपोजिशन चैम्बर जो है वहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बैठे हुए हैं, जबकि हुकूमती जो चैम्बर्स हैं वहां पर जो है असद उमर, शाह महमूद कैशी और दीगर जो अरकान और पार्टी की आदत है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो ऐवान के अंदर जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है, जो कि हुकूमती अरकान है उन्हें एक जानिब जाने का कहा जा रहा है, जिसको उनके हवाले से बाकायदा तौर पर काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है ऐवान के अंदर जो है वो खूब हल्लड़बाजी की जा रही है और इस तमाम अमल को रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि स्पीकर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज कोई बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ एक इत्तेमाद के वोट की कार्रवाई जो है उसको जो है वो किया जाएगा। इस वक्त जो है पंजाब असेंबली के इजलास के अंदर जो है वो अदम इत्तेमाद के हवाले से वोट गिनती का सिलसिला जारी है, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है वो भरपूर जो है वो हंगामा राई करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी
हंगामा राय का सिलसिला जारी है। फहीम साथ ही मौजूद रहेगा। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, पहले अपोजिशन ये कहती रही कि एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, और अब जब एतमाद का वोट लेने जा रही है हुकूमत, तो इस वक्त हंगामा राय क्यों की जा रही है, खलल क्यों डाली जा रही है? बड़ी सीधी सी बात है। पहले उनका ख्याल था इनके पास नंबर नहीं है, वो कहते थे लो, अब उनको नजर आ गया नंबर है, वो कहते ना लो। इसमें तो कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है। वो तो ब्लफ था, उन्होंने ब्लफ कॉल करे, उनका ख्याल था कि अपोजिशन के पास, सरकार के पास नंबर नहीं है। तो ये तो इसमें तो ये तो सियासत में होता है। देखिए चीजें पलटती हैं, हालात बदलते हैं। असल चीज ये है, देखना ये होगा हमें कि ये नंबर की गेम अचानक इस तरह क्यों बनी। क्या जो प्रेशर थे वो हटे? अगर वो प्रेशर हटे तो क्यों? ऐसी क्या चीज हुई है कि कल तक आप कह रहे थे कि फोन आ रहे हैं और बहुत प्रेशर है जी, 5-5 लोगों में 20 करोड़ बांटा जा रहा है। तो असेंबली 24 घंटे में, इसका मतलब कोई ना कोई बड़े फैसले तो हुए कहीं पे। तो से कोई लोग पीछे हटे, या अदारे पीछे हटे हैं, या पावर भी हटी है। तो क्या वो हटी है किसी मजबूरी से कि ये उनको नजर आ रहा था कि हम हालात बदल नहीं सके, या किसी नई स्ट्रैटेजी की वजह से?